Assalamu alaikum. Today I'm online discussion Medical Council of Canada और इंटरनेशनल डॉक्टर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा लाइसेंस पेथवे इन कनाडा। तो आप कैसे कनाडा जा सकते हैं डॉक्टर्स, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए physician.ca पे आप जाके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे पहले, उसका मैं आपको तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप अपना सोर्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स करेंगे। लॉगिन अकाउंट की फ़ीस होती है, उसके बाद आप सोर्स वेरिफिकेशन कराएंगे अपने पर क्रेडिशनल 4 डॉक्यूमेंट्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सब मेरे जितने डॉक्टर आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब माई कीवी मेडिकल काउंसिल या डॉक्टर आसिम परवेज़ अहमद चैनल पे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फेसबुक पे इतनी सपोर्ट दी है, तो आइंदा भी आपको एमसीक्यूज में देता रहूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताता हूँ मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा इंटरनेशनल डॉक्टर्स लाइसेंसिंग पैथवे के बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कनाडा अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर्स। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू दी टू पाथवे डिफर। दो पैथवे हैं अप्लाई करने के लिए कैनेडियन मेडिकल काउंसिल में, प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट एंड कैनेडियन रेजिडेंसी मैच सर्विस। You can eligible to practice after assessment as a physician in specialty after fulfill the criteria. Second are Canadian residency match service if you are new graduate, do not have a 2-year family medicine training required specialty training. You can adopt this pathway to get residency in Canadian universities. Route of license. The Medical Council of Canada MCCA plays an important role in the assessment of physician in Canada. The MCC does not, however, confer license to physicians. This is responsibility belongs to the provincial and territorial medical regulatory authorities. I am international trainee. What should I do before coming to Canada? Confirm your medical degree is recognized in Canada. Make an account, register yourself physician, apply.ca. Submit your medical credential for verification. Take MCQE 1 part exam. This is medical knowledge exam computer based, which is now taken all over the world, different centers. MCC through physician apply.ca. Accept application for the exam 4 times in a year. Make sure you are well prepared. And now the closing date for application. English test IELTS. Must English test IELTS is 7 band. This test is valid 2 years, so you should be plan it is accordingly and have to score बैंड 7 इन ऑल। इस तरह इंटरनेशनल जो डॉक्टर है अप्लाई करेंगे पैथवे। नेक्स्ट, हाउ टू यूज physician apply.ca. This is site provide essential information to medical student and international medical graduate who may be eligible, can become eligible to be part of Canadian healthcare system. Services exam application, exam result, source verification for your all medical credential, education credential assessment, document translation if they are not in English. ये है, आप इस तरह अप्लाई करेंगे हाउ टू यूज़ फिजिशियन apply.ca पे। और ये आपने एप्लीकेशन करनी है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट, सोर्स वेरिफिकेशन सर्विस एंड एजुकेशन क्रेडिशनल। ट्रांसलेशन अगर आपके इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में देंगे, बाकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। What should I do after I come to Canada?
OSCE, a scenario-based clinical exam and knowledge test taken 2 times in a year. A design center can apply center residency training CARMS. Each province different prerequisites for application. MMI, CASPER, and situational judgment test can apply for practice ready assessment for the doctors. Some tips: be familiar with MCC and physician apply website. Source: verify your all credential once you are still in Pakistan. It would be more easy. Do check requirement for different territories and plan accordingly. Set up in email reminder for email which you wish to take particular part of year. Always use recommended resources. जो टिप्स हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिए. रिक्वायरमेंट मस्ट है प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट PRA as a family physician, as a specialist. Criteria for working as a family physician through PRA in Alberta. First, pass MCCQ 1 exam. Second, IELTS band score 7. Third, in 2 years PG training in family medicine continues for Alberta. In other state, get the eligibility letter from the college CPSA. Pass TDM, therapeutic decision making exam. This is the practice ready assessment. Step to start your PRAAB. Step 1, make sure you meet CPSA eligibility requirements. Step 2, credit in account with physicianapply.ca. Step 3, submit a review qualification. Step 4, secure AH sponsorship. Apply for TDM exam if your credentials are from outside of Canada. Step 5, apply for independent practice for Canada. Step 6, pass a practice readiness assessment. Step 7, get your permanent. Visit a practice readiness assessment Alberta in other state. www.cpsa.ca. ये भी प्रोसेस है कि आप वहाँ जब आपके एग्ज़ाम और ये सब कुछ पास हो जाए तो ये आप स्टेप कर सकते हैं और अल्बर्टा और वहाँ आप अल्बर्टा में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना ये प्रोसेस करके. नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर वर्किंग एज अ फैमिली फिजिशियन थ्रू PRA इन अदर प्रोविंस. फर्स्ट स्टेप, पास MCCQ 1 एग्ज़ाम. Second, pass NAOSCE with required score. Third, IELTS and band 7 score minimum. Fourth is the 2 years PG training in family medicine. 5 is should have a 2 years of independent practice family medicine after training. 6, pass is the TDM therapeutic decision making exam. जब आप ये क्राइटेरिया वर्किंग है फैमिली फिजिशियन अदर प्रोविंस के लिए, उसमें पास एग्ज़ाम होना चाहिए MCQ 1 और NASC OSCE 2 एग्ज़ाम. IELTS 7 बैंड होना चाहिए. 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फैमिली मेडिसिन का होना चाहिए और पास TDM थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग एग्ज़ाम होना चाहिए. जब ये आपके कंप्लीट होते हैं यू आर एलिजिबल फॉर द मेडिकल काउंसिल लाइसेंस इन कनाडा. फिर आप अदर प्रोविंस में इस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पे काम कर सकते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन अदर प्रोविंस में कनाडा में. ये है कनाडा के लिए यूज़फुल वेबसाइट डॉक्टर्स अप्लाई करेंगे. जो मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा MCCA.ca. सेकंड है फिजिशियन अप्लाई ऑनलाइन IMG रजिस्ट्रेशन physicianapply.ca. CARM www.carms.ca. ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो डॉक्टर जाते हैं
वो अप्लाई करेंगे CARMS में एग्ज़ाम पास करने के बाद। प्रैक्टिस टू रेडी असेसमेंट PR, प्रैक्टिस टू रेडी असेसमेंट PR के लिए आप अल्बर्टा पे अप्लाई कर, प्रैक्टिस रेडनेस असेसमेंट अल्बर्टा पे अप्लाई करेंगे तो www.cpsa.ca पे। बाकी अदर प्रोविंस के लिए अलहदा क्राइटेरिया हैं और पैटर्न वही है, सेम पैटर्न है। यूज़फुल वेबसाइट सैस्कैचुअन इंटरनेशनल फिजिशियन प्रैक्टिस असेसमेंट SIPPA। दूसरी प्रोविंस के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये यूज़फुल उनकी वेबसाइटें हैं। CMElearn.usask.ca, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाबा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट प्रोग्राम PRAMB फैमिली प्रैक्टिस एंड PRAMB स्पेशलिटी प्रैक्टिस। मोंटाबा के लिए आपको ये वेबसाइट जो है याद करें, UMANITOBA.ca फैसिलिटी हेल्थ सर्विसेज, ये इनकी वेबसाइट है। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए जब आपको सारे प्रोसेस हो जाए। ये दूसरी स्टेट का है। कॉलेज डी मेडिसन क्यूबिक, जो फ्रेंच स्टेट है क्यूबिक, उसके लिए ये है प्रोसेस के आपके कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए, एग्ज़ाम पास होना चाहिए, सब कुछ। तो उसके लिए रेजिडेंसी के लिए सब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वेबसाइट है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं www.cmq.org। और क्लिनिकल स्किल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के लिए आपके लिए ये वेबसाइट है www.cpsnla.ca पे अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना फैमिली मेडिसिन का, फैमिली फिजिशियन का। नोवा कोर्सिया प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट प्रोग्राम है उनका, उनके लिए आपको NSPRAP www.nsprap.com पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, सारा कंप्लीट करके प्रोसीजर। ये अदर प्रोविंस के लिए अल्बर्टा से, जैसे आप अपना ये कंप्लीट पास एग्ज़ाम कर लेते हैं, अपना IELTS पूरा करते हैं, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं मेडिकल काउंसिल कनाडा की, तो फिर आप इस यूज़फुल वेबसाइट पे जाके जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हैं अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद रेजिडेंसी ले सकते हैं इन वेबसाइटों के थ्रू। ठीक है, ये मैंने आपको सारा रेजिडेंसी प्रोग्राम भी बताया है और लाइसेंस पैथवे रजिस्ट्रेशन का भी बता दिया है आपको, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त।